Namaste, Ji, Namaste. Welcome to Courtroom. Hope you're doing well. So let us discuss out the question paper for DULLB2022. As always, it's an annual tradition. First question, we are going to be skipping the 5 passage wale questions. It was the easiest passage in years. It was quite simple. At least 3 questions were doable. 2 may have been very confusing, but 3 were quite doable. If I get the time, I'll discuss them out in a separate lecture. What is the antonym? That is an opposite for practical. अब यहाँ पे impractical और mispractical, I don't think that most people would get confused in this. But you would get confused in this. It is quite natural as well, क्योंकि जब exam दे रहे होते हैं आप, या exam whenever you're taking the exam, it's always taking the exam. ये चीज़ें जो है ना, friend और friend की spelling FRIEND या FREIND, which one is correct? Tomorrow में M और R कौन सा होता है? तो लग डाउट आना शुरू हो जाता है, यार unpractical नाम की चीज़ तो कोई नहीं है. But that is quite impractical to think that, because impractical is pretty much the correct answer. Now, this is an either you know it or you don't know the question. For people who are preparing for 2023, antonyms become an important topic for you. Choose the correct meaning of the idiom. So another topic that you need to prepare for the DULLB is idioms. Let the cat out of the bag. This is pretty much कि आपने कोई गुप्त information, any top secret information that you have revealed. So to reveal a secret accidentally, you have let the cat out of the bag. It is as simple as that. Okay. Now this is a slightly tough question. DULLB के standards के लिए, otherwise not exactly a very tough question. This is primarily speaking a test of your reading ability in life. Ali's father began his life like many a poet who walked the earth before him with great optimism. Okay. Now, in questions such as this is a competitive exam. Nobody will have a clear-cut answer prima facie in questions such as this. You need to use the process of elimination. So let us first figure out what game is the examiner trying to play with us. A, B, C, D. So यहाँ पे अगर आप first option देखें तो 2 में A है और 1 में D है और 1 में B है. अच्छा, पहले D वाले को consider कर लेते हैं. However, अब भैया ऐसा है, कोई भी paragraph however से कैसे शुरू हो रहा है? ये तो बिल्कुल गलत बात है, because however will almost follow a condition precedent to it. क्योंकि एक चीज़ आपको एक statement देंगे और उसमें कहेंगे however, लेकिन ये बात अब मतलब it will be another set of condition that basically the examiner will talk about. तो D तो पक्का नहीं है. B है, it was as if his only achievement was to have given him a grandson and heir. Now ये शुरू हो रहा है it से. It से usually ज़्यादातर paragraphs unless and until it is talking about something else, क्योंकि it may just not be able to refer to something. तो B से भी most likely ये नहीं शुरू हो रहा है. And to confirm this, we have 2 options that are now starting out with A. यहाँ पे A. And this makes sense if you read all of these 4 options. This makes sense that the passage or the order starts out with A. So the order is definitely starting out with A. Now let's see. Ali's father, पिताजी उनके जी, began his life like many a poet who walked earth before him with great optimism. जिंदगी में ये बहुत खुश थे. अब अगर मैं इसमें लॉजिक लगाना शुरू करूँ, लेकिन however, over the years, even a self-published collection of romantic couplets financed by Khan Sahib could neither lift his spirit nor his fortunes. But लेकिन हम डबल चेक कर लेते हैं. अच्छा, हमारे पास जो 2 बचे हुए ऑप्शन है उसमें C तीसरे नंबर पे ही आ रहा है. What hurt him the most was how his father had virtually written him off. Now C तो भैया तीसरे नंबर पे ही आ रहा है क्योंकि वही 2 ऑप्शन बचे हुए हैं. लड़ाई है B और D में. अब जरा A के बाद B लगा के देख लेते हैं. Great optimism. It was as if his only achievement was to have given him a grandson and heir. Now this B is certainly not following A. As per the normal, you can say common sense से भी अगर आप पढ़ें, अगर आप A पढ़ें और उसके बाद B पढ़ें तो it isn't fitting in. So what is fitting in? A के बाद certainly D is fitting in. And there is only one option that is dictating that, क्योंकि C तो उस पर common है ही, and then आपका B will follow. It is as simple as that. So thus making 4 number the correct option, right? Pretty much simple. Choose the correct, but for a majority तो नहीं, but on an average अगर आप एक average student रहे हो, this question sort of can cause problems. Choose the correct option in line with the example. Fish is to school. Now this is a past year. अलग अलग रूप में ये बार बार आते रहता है. Lion definitely. Sprite. Now this is a collective noun. Alright. So for next year 2023, you need to be preparing collective nouns. Choose the antonym for harmonious. Okay. Antonym is again, remember, the opposite.
Antonym for harmonious. Now, harmonious is something which is in alignment या दो चीजें harmony में आ रही हैं. You know, this is like a very sort of a positive sort of word. So sonorous. Now let us say that हमें नहीं पता. All right. Discordant मतलब मैंने कहा ना harmony में दोनों चीजें अगर alignment में आ रही है ना, this is sort of a negative word. We can consider this. Concordant, balance तो definitely नहीं होगा क्योंकि harmonious को almost आप कह सकते हैं कि सिनोनिम की साइड पे है ये. बट कॉन्कॉर्डेंट और डिस्कॉर्डेंट कौन सा ज्यादा नेगेटिव लग रहा है अगर मतलब भी नहीं पता इनके? इट इज सर्टनली डिस्कॉर्डेंट. दैट इज हाउ यू प्रीटी मच. अब केबीसी भी अगर आप देखते होंगे तो केबीसी में भी लोग ऐसे ही एनालाइज करके मार्क आउट करते हैं आंसर, बिकॉज देयर इज नो वे यू कैन प्रैक्टिस एज मच vocab as you wish to, but in a competitive exam they can still ask you words which you have no clue about. So this is how pretty much you go about it. All right. Question 6. Choose the correct one word for the phrase an office for which no salary is paid. I see a decent question. Hospitality, certainly no. All right. Gratitude is in which I'm just thanking you. Right. Certainly no. Honorary, this pretty much is the correct answer because the honorary chairman जिसके अंदर आपके पास कोई पैसे वैसे हम नहीं दे रहे. This is pretty much the correct answer, but एक बार check कर लेते हैं. Gratuity is something that you are paid for the services that you have done or performed in the company for about 5 to 7 odd years. Okay. Question 7. Choose the correct meaning of the word inalienable. So something, give me 1 second. Inalienable. Now what is inalienable? Alienable is something which you can easily let go of. Acha, he alienated me, right? So he left me, right? Not capable of being transferred. ज़्यादातर लोग अपने क्रशों के लिए ये ज़्यादा यूज़ करते हैं. अच्छा जी वो मेरे को छोड़ के चला गया. He alienated me. Not capable of being transferred. Okay. Anything that can be avoidable. This certainly is not the answer. Capable of being transferred. तो ये legal sense में आपसे पूछ रहा है. Capable of being transferred extremely unimportant नहीं. आपके कब आशिक एक्सट्रीमली अनइम्पॉर्टेंट रहे? एक्स बनने के बाद तो सब एक्सट्रीमली अनइम्पॉर्टेंट हो जाते हैं. बट केपेबल ऑफ बीइंग ट्रांसफर्ड एंड नॉट केपेबल ऑफ बीइंग ट्रांसफर्ड. नाउ यू सी द गेम दैट इज बीइंग प्लेड हियर. एलिएनेबल इज भैया मेरे को छोड़ के चला गया, या तो केपेबल ऑफ बीइंग ट्रांसफर्ड कि भाई दिस इज अ वेरी एलिएनेबल प्रॉपर्टी, वी कैन ट्रांसफर इट आउट. दिस इज नॉट केपेबल ऑफ बीइंग ट्रांसफर्ड. इन इज not capable of being transferred. It is again either you know it or sort of don't know it, but अगर आप थोड़ी सी POE use करें, maybe you have a better chance at scoring such a question. I'm not saying that you will definitely get it correct, right? If your English vocab needs work. Choose the antonym for conducive. Okay, again we are at an opposite. Conducive is something which is that the environment is very conducive, the environment is very favorable. Is that somewhere unfavorable? Or simple, right? Conducive is the conditions are very conducive today for us to win the match, right? So the conditions are very favorable today, but so it's unfavorable. Antonym पूछ रहा है. All right. What does a primogenitor mean? Tough question. This is a tough question, right? A piece of admissible evidence in court, as far as I know. No. Hearsay evidence, certainly not. Primogenitor, genetics, geni, ऐसे तुक्का मारेंगे ना कुछ तो तुक्का मारेंगे. The system by which the eldest son inherits all of his parents' property. Formal acquisition in a trial. अब नहीं पता हो तो obviously अब मैं आपको कहूँ हाँ ये कर लेना चाहिए था, इतना बड़ा आसान था ये वो नहीं. This is a tough question. This is a tough question, especially at your age. Now age matters. क्योंकि for things for me to pontificate that हाँ ये तो बहुत आसान है तुम्हें कैसे नहीं. This is a tough legal term. But if I were to make a reasonable guess, genitor, genetics, eldest son inherits all of his parents' property, I would pretty much mark this, which I think is the correct answer. But if you didn't know it, there is absolutely no shame in this, in skipping this question or perhaps getting it wrong even. What is the meaning of the phrase virtually set the stage? भाई उसने तैयारी कर ली. Is virtually set the stage. To decrease in extent or quantity? No. To save? No. To increase the interest of onlookers? No. To ensure the probability of occurrence of an event? Yes. So by preparing for DULLB, he has, by preparing well for DULLB or putting in more and more time towards his competitive examination, he's virtually set the stage for clearing it.
to ensure the probability of occurrence of an event. Okay. If A, okay, logical. If A is to the south of B, okay, ठीक है जी. C is to the east of B, okay जी. What will be the reaction in A with respect to C? C के नजरिए में A भैया कहाँ है? South, west, southwest. Good enough. I don't think that you can get a simpler logical reasoning का question. The examiner cannot make it more simpler for you. Alright, this is elementary level. 5वीं कक्षा के बच्चे वाला level. Payal earns double in the month of December as compared to the other months of the year. What part of her entire year's earnings does she earn in December? ये एक्चुअली बड़ा स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है. इसके अंदर जो क्वेश्चन जो ज़्यादातर जो किताबों में दे रखा है वो मार्च का दे रखा है. आई वोंट गो इनटू द निटी ग्रिटी डिटेल्स और कैलकुलेशंस ऑफ इट, बट दिस इज वेरी मच द आंसर. वो कह रहे जी अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करें, पायल अर्न्स डबल इन द मंथ ऑफ डिसम्बर, ओके, एज कम्पेयर टू द अदर मंथ्स ऑफ द ईयर. अच्छा जी, सो शी इज अर्निंग 2x इन डिसम्बर एंड अदर मंथ्स ऑफ द ईयर कितने हो गए? 11 महीने. मतलब अब प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स करते रहेंगे, राइट? तो 11 महीने में तो वो एक्स अमाउंट कमा रही है, और दिसंबर में शी इज अर्निंग ट्वाइस दैट अमाउंट. ऑलराइट, सो व्हाट पार्ट ऑफ हर एंटायर अर्निंग्स डज शी अर्न इन दिसंबर? ऑलराइट, सो व्हाट पार्ट of basically 11 plus 2x is equal to 13x, what part is she earning in December, right? अब दिसंबर में उन्होंने क्या कहा था जी? शी अर्न्स डबल, राइट? तो इसके 2/2 हिस्से शी इज अर्निंग इन दिसंबर. ये आंसर 2/13. कई लोगों को इसमें कन्फ्यूजन रहेगी, मैथ्स बड़ी कमजोर है, नहीं जी नहीं पल्ले पड़ रहा. कोई बात नहीं, मैथ्स ज़्यादातर पूछ भी नहीं रही है भैया. एक्चुअली मैंने इसको लॉजिकल में ही डाल रखा है बिकॉज दिस कैन प्रीटी मच बी सॉल्व्ड बाय लॉजिक ओनली. दिस डजंट इन्वॉल्व एनी मैथ्स एज सच. ओके. If in a certain code decry is written as WVXIB, okay, decry WVXIB, then praise would be written as E जा रहा है जी V में, okay जी, well done. E जा रहे हैं V में, तो praise, ये लो जी, उसे भी पता हम क्या करने वाले थे. We were taking the easy way out. उसने वो रास्ता ही बंद कर दिया. Let me just, okay, so E is log to V, right? And then कोई और कॉमन है, that is basically V to make our life easier. R जा रहा था जी आपका I में, okay, R जा रहा है I में, तो praise यहाँ पे I में ही जा रहा होगा. ये लो जी, अंकल ने फिर हमारा दरवाजा बंद कर दिया. अंकल बड़े तेज हैं, मतलब आसान वाला दरवाजा हमारा सारा बंद कर दिया इन्होंने. ओके, नाउ इट सेज यहाँ पे y is going to b. अच्छा जी, y is going to b. ओके, प्रेज में PR और A किस पे जाएगा फिर? अगर if y is going to b, that means ऑर्डर कहीं ना कहीं तो रिवर्स ही हो रहा है, करेक्ट? सो A goes to Z then, या श्योर, क्योंकि अल्फाबेट रिवर्स हो रहा है यहाँ पर. if y is going to b, so w y x y z, x y z, राइट? तो y सेकेंड है रिवर्स में से and b पहला है from the starting of the alphabet. तो if it goes to A B C, then we go to Z and then Y and then X, right? So B is certainly going to Y, जैसा कि यहाँ पे Y is certainly going to B, alright? So A then goes to Z, okay? Then basically ये सारे ये दोनों ऑप्शन तो मेरे चले गए. अब लड़ाई रह गई है जी whether this is going to R or this is going to T. तीसरा वाला देख लेते हैं जी हम अपने में. यहाँ पे चौथा वाला I is going to R और I is going to T. A B C D E F G H I. A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट? एंड 9 का हमने यहाँ पे जो काम करा है, आई थिंक 9 में Z Y X A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z. I think we're looking at R to be the correct option.
मैं यहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट कर रहा अभी पूरा अल्फ़ाबेट और रिवर्स उसका लगाकर. I'll just display it on the screen. I'll take an image from Google and this should be the correct answer. I believe that this is pretty simple. This is, again, it may take some time to solve in the real life exam, but this is simple, right? Okay, 5 ones are 5 और यहाँ पे +1 हो रहा है. Okay, 5 twos are +2 हो रहा है. 10 +2, 15 +3, 18, 4 में 20 +4. What will be the value for 9 5s are 45 + 9 is 54. लो जी, और +4 आ गए, मुबारक हो. Right, very easy. Tough question as in if you don't know the trick to this. This is a very simple question if you know the trick. If you don't know the trick, well, then you're stuck. It was a Saturday on 1st January of the year 2011. Anytime that you get an year wala question, you need to remember that 2000 was a leap year. Okay, then we go to 4, then we go to 8, then we go to 12. So all of these are leap years. How many days does a leap year have? It has 366. But if we are to travel it, or if we to calculate it in terms of weeks, so 52 weeks we have 7 days. क्या कितना दिन बनता है जी? And this is 7 5 is 35, 364 plus 1 day. Correct? तो total हो गए 365 दिन in a standard year. But in a leap year you have plus 2 days. Okay. Hopefully you've understood this. What have I done? I'm telling you, in leap year we have 364 plus 2 days. How am I getting to this figure? Let me repeat it. We have 52 weeks in a year. 52 weeks, हर हफ्ते में कितने दिन? 7 दिन. मल्टीप्लाई करेंगे तो 364 दिन, और एक दिन बैलेंस बच गया क्योंकि हमें पता है 365 दिन होते हैं. Alright. Now, after each year ends, it is 52 weeks have completed, so we'll come back to the same day from which the year started, but we'll have to add 1 day. But in the case of a leap year, we have to add 2 days. Now leap year is 2000, 2004, 8, 12, 16, 20. Now incoming 2024. It was a Saturday on 1st January of the year 2011. So this is certainly not a leap year. Okay. What was the day on 1st January of the year 2014? Okay जी. 2011 में कह रहा है जी, दिन साल शुरुआत हुआ था शनिवार से. जय हो शनिदेव की, किसी पे 7.5 का प्रकोप ना पड़े. 2012 में आप बताएं इस कैलकुलेशन के हिसाब से द डे विल बी, वोंट इट बी अ संडे, जो पहला दिन होगा. क्यों? क्योंकि 52 हफ्ते खत्म हुए होंगे 2011 से, एंड नाउ वी आर टू 2012. सो यहाँ पे तो सैटरडे हो गया, एंड देन 1 day we add to that. Therefore, it is starting out from Sunday because the year has ended. But now 12 is a leap year. Okay, so we have to add 2 more days for 2013 to start. So we go to Monday and Tuesday. And Chacha ji is asking us which year is 2014. The answer is, क्योंकि अब ये non-leap year, the answer is Wednesday. Hopefully the answer is Wednesday. Hopefully I haven't gotten it wrong. Correct? ये काम आपका हो जाएगा. Now, if you didn't know how to calculate this, then life becomes tough. So you may have just gotten this incorrect or may have just skipped this altogether. Alright, choose the correct alternate from the options given below to replace the question mark. This again, you can say in a way is a modification of around 2 odd past year question. Bibliophobia is fear of books. वकीलों को ज़्यादातर हम लोगों को मैथ्स से ज़रा डर घबराहट ही लगता है, तो हमें bibliophobia है मैथ्स की. I keep checking my mic whether it's on. Sometimes it goes off and then आप continuous lecture दे रहे हैं and दिक्कत हो जाती है. Then pyrophobia. Now the word pyro, a funeral pyre, जो शमशान घाट में जो चिता जलती है, इंग्लिश में फॉर्मल उसका साउथ दिल्ली वाला वर्जन नेम इज funeral pyre. So pyro is always goes to fire. लेकिन ये बहुत हीरो आदमी है, इसने आपको फंसाने के लिए, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, पाइथन्स डाल रखा है, तो अगर आपका ये गलत हुआ तो आप पक्का हीरो बन के आए होंगे, है ना? बने थे ना जिनका अगर गलत हुआ इस ऑप्शन के चक्कर में. वो ऑप्शन डाला भी इसीलिए गया है कि अच्छा सुनना है, पढ़कर आए हो तुम, सुना है, तुम्हारा लॉजिकल में भी दिमाग अच्छा है, आना ज़रा. अगर ये ना पता हो तो फंसा देगा. अगर पता हो इंग्लिश की वो क्या, जनरली स्पीकिंग ठीक है, तो आई थिंक यू वुड हैव गॉटन इट करेक्ट.
Pointing to a woman says, a man says, okay, so a man pointing to a woman, and let's use a different color ताकि पता हो. Her mother, okay, mother is the only daughter-in-law of the grandfather of my son. Okay जी. Her mother is the only daughter-in-law of the grandfather of my son. एक तो जी इनका son है और एक इनका यहाँ पे grandfather है son का. Alright. And her mother is the only daughter-in-law. तो भाई साहब बीवी तो हो गई आपकी. इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बोल रहे हो? इतना डरने घबराने की क्या जरूरत है? सीधा बोलो बीवी. बीवी है आंसर. It is as simple as that. अच्छा जी. But how is the woman related to the man? So therefore she becomes the daughter, right? Achha, pointing to a woman, her mother is the only daughter-in-law of the grandfather of my son. Her mother के बारे में mother पूछता तो बीवी थी, जैसा कि मैंने बोला, लेकिन ये daughter निकल आई. गलती होते होते बच गई, ईश्वर की कृपा है. ठीक है जी. अगर OMR शीट होती तो फटाफट आंसर मार्क करने के चक्कर में यही गड़बड़ होती है. How is the woman related to the man? वुमन के बारे में पूछ रहा है, उसकी माँ के बारे में नहीं पूछ रहा. तो वुमन तो फिर डॉटर हो गई. तो ये वाले को हम काट देते हैं और ये आंसर बन गया आपका डॉटर जी. एज सिंपल एज दैट. वेरी वेरी सिंपल ब्लड रिलेशन क्वेश्चन. बट यहाँ पे अगर आप गलती करके आए होंगे तो ये नीडलेस नेगेटिव आ गया होगा. नीडलेस नेगेटिव आ गया होगा जैसे मेरा भी आने वाला था. आई वोंट प्रिटेंड हाँ मैं फंसा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं. ओके. इफ फेवर इज रिटन एज EBUPTS in a certain code, okay, then danger will be written as. पहले जरा देख लेते हैं रिपीट क्या हो रहा है. फेवर R जा रहा है S को, डेंजर A लो. भैया ने तो पहले ही हमारा सबसे इजीएस्ट रास्ता रोक दिया है. ओके. RPQRRS एक आगे गया है. ठीक है जी. ABCDEF एक पीछे गया है. पहला वाला तो पक्का पीछे गया है. -1. Alright. A is going to B. So this is going to +1. अच्छा जी. तीनों पे C जा रहा है तो D में -1 जा रहा है. ठीक है जी. ये तो बात कंफर्म हो गई. Then A goes to okay +1. अब लड़ाई यहाँ पे DDDF यही ऑप्शन वेरिंग है और F और M में डिफरेंस है. अच्छा आगे अभी देख लेते हैं. ये -1 +1 और ये तीसरा क्या हो रहा है जी? PQRSTUV. So this is going to -1 again. तो N will definitely go to, तो ये तो हटा देते हैं. This अब ये दो ऑप्शन बच गए हमारे पास. CBMHDS. Okay, CBMHFS. Right. This is good enough. अब हमारे से क्या पूछा जा रहा है? ये वाले तो हम यहाँ तक पहुँच गए थे. उसके बाद हम जा रहे हैं. Then it will obviously go to -1 अभी तो हुआ. Then G के बाद H वाला ऑप्शन कौन सा है जी? दोनों में ही H है. ये तो भैया पूरे ही प्राण निकाल के मांगे. Then E will go to -1. तो A B C D E F D. लो जी. 2 number is the correct option which fetches us a +4. Mic अभी भी चालू है. Great. If the following alphanumeric series, choose the correct letter which can replace the question mark. Okay. B25 D23. This is certainly a -2. अच्छा हमारे से लेटर के बारे में पूछ रहे हैं. हमें शायद इतना दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है. B के बाद B C D. तो we are adding +2 to B. Okay. D के बाद E F G. Okay जी. We are adding +3 here. G के बाद H I J K. We are adding a +4 here. K के बाद L M N O P. Okay. Great. Hopefully this answer is correct and I won't be needing a reshoot. Alright. Hopefully this is correct. तो ये +2 +3 +4. So certainly it's going to +5. अच्छा इसने हमारे से 2 क्वेश्चन मार्क नहीं दिए. उसमें और ज़्यादा सर लगाना पड़ता. Hina, who is Vijay's daughter, says to Lucky. Okay. Vijay's daughter Hina says to Lucky.
लकी बॉय आ गए हैं। योर मदर रजनी, अच्छा जी रजनी है, इज द यंगर सिस्टर ऑफ माई फादर। सो रजनी जी इधर, शी इज द younger sister of my father, who is the third child of J. Okay, J certainly is the grandfather, क्योंकि ये तो बुआ हो गई ना इनकी। Younger sister of my father is बुआ जी, कलेश मचाने वाली बुआ जी। Who is the third child of J? अब एक child और है, हमें क्या लेना देना उससे। How is J related to Lucky? J is standard है, grandfather है। I don't know, some people are commenting that we'll raise an objection on this. For what? Clear तो है? Okay. Under Article 12 of the Constitution of India, state includes. This is the most standard question. I think YouTube पे one of our course demos के अंदर Article 12 का एक lecture भी पढ़ा हुआ है, in which I demonstrated where this question is flowing from. This is flowing from Article 12. This is a very standard question. The Government of India and the Parliament. The Government of India and the Parliament and the legislature of each state. But as we do in our online and offline classes, again and again for Article 12, article याद करने वाला भी है, और Article 12 अगर आपने पढ़ा हो तो this is the correct answer. I don't think that there is any other discussion to be had, or other authorities within the territory of India or under the control of Government of India. इस पे बहुत सारी, जब आप फैकल्टी में जाएंगे तो बहुत सारी आपको जजमेंट्स भी आपने पढ़नी है, that what all constitutes a state, whether SBI state, LIC state, BCCI state, अलग अलग चीजें हैं state। okay. Union territory according to the Constitution of India means any union territory as specified in the first schedule। अच्छा, सारे ही फर्स्ट शेड्यूल, चलो जी अच्छी बात है। तो फर्स्ट शेड्यूल में तो पक्का ही आ रही है एज यूजुअल, फर्स्ट शेड्यूल में आनी। सिक्स शेड्यूल इज नॉट रिलेटेड टू यूनियन टेरिटरीज, सेवन शेड्यूल इज सर्टनली नॉट रिलेटेड टू यूनियन टेरिटरीज। 10th तो एंटी डिफेक्शन है, 7th के अंदर आपकी वो लिस्ट दे रखी है, कुछ नहीं करना है। 6th वैसे भी वो ट्राइबल एरिया वगैरह का काम है। एंड इंक्लूड्स एनी अदर टेरिटरी कंप्राइज्ड विद द टेरिटरी ऑफ इंडिया बट नॉट स्पेसिफाइड इन दैट शेड्यूल। काफी लोग इस पे आई थिंक ऑब्जेक्शन क्रिएट करना चाहते थे। यहाँ पे किसी भी क्लॉज में चेक समवेयर 29 या 30 होगा, आई थिंक 30 के आसपास होगा चेक। यूनियन टेरिटरी की डेफिनेशन वहां पे दे रखी है वहां पे, यही दे रखी है 30, 31 या 32। आई फॉरगॉटन द एग्जैक्ट क्लॉज नंबर, बट ये दे रखी है, कृपया करके चेक कर लीजिएगा। दिस इज प्रीटी मच द करेक्ट आंसर, देयर इज नो ऑब्जेक्शन to be made। वैसे भी ऑब्जेक्शन का when I'm shooting this time सारा निकल भी चुका है, and there was no objection in this answer key to begin with, as we discussed in the video uploaded that day। Who among the following was the chairman of the advisory committees on fundamental rights, minorities and tribal? लक्ष्मीकांत चैप्टर 2 का क्वेश्चन है, बल एंड में उसमें टेबल दे रखे हैं वल्लभ भाई पटेल। सिंपल है, रट्टा मार क्वेश्चन है, you either you know it or you don't know it question। So now we have entered into legal territory. Given below are two statements, one is labeled as assertion and the other one is labeled as a reason. Okay. Constitution Day, also known as Samvidhan Divas, is celebrated in India on 26 November. National Law Day, yeah, sure. Yes, we adopted the Constitution, sure. That is given in the preamble as well. On 26 November 1949, the Constitution of India came into force. Nope. Yeah, it came into force on 26 Jan 1950. So A is 2, R is false. Great, that is the correct answer. The primary remedy under the law of torts is, अच्छा by the way, ये जो question था, you cannot afford to get such questions incorrect buddy in a law entrance, sorry। If you're getting this incorrect, मर गए, मतलब तैयारी नहीं थी basically। The primary remedy under the law of torts is unliquidated damages। ये तो I think 10 years में 1000 बार पूछा होगा, and this is a very very simple question। It can't get any simpler than this। Which of the following is an example of trespass? Arjun walks in front of Saket's house staying on the sidewalk। अरे भाई तो trespass कैसे हो गया? Rishabh enters Akash's land without Akash's permission and kills a hen। ये हो सकता है, बाकी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। George walks into Radiant's house who has invited him for lunch। to trespass कैसे हो गया? Riya takes a lift in Priyanka's car for going to college। होपफुली किसी का वकील ना जागा हो कि अरे प्रियंका ने से तो रिया ने कंसेंट ही नहीं लिया था, क्या पता वो जोर जबरदस्ती। बाबूजी अपना काला कोट अभी 3 साल बाद पहनना है, थोड़ा सा मन को विश्राम करें, थोड़ा सा आराम दें। हरीश साल्वे, अपने अंदर के हरीश साल्वे को कंट्रोल में रखें और 2 मार्क करें, विच इज द बट ऑब्वियस क्वेश्चन। ठीक है जी, सिंपल, मतलब बट ऑब्वियस ऑप्शन। ओके, मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 लिस्ट 2। मॉक्स में जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जाकि वैसे काफी सारे ऐसे ही पूछे गए थे,
तो लोग कह देते हैं इतना टफ थोड़े ना पूछता है DULLB, ये लोग LLM UPSC के लेवल का बनाते हैं जानबूझ के, ये है वो है, अलग अलग प्रकार के पेपर बनाए, तभी तो क्या बोलते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, पहले एक ज़माने में 1 लाइनर आता था, अभी आज 5 क्वेश्चंस एक साथ कंबाइंड है, तो इसीलिए तैयारी तो उसी हिसाब से करनी पड़ती है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, लीगली एनफोर्सेबल विद लीगल ऑप्शंस, ओके। voidable contract, valid till avoided by, okay. A is certainly going to 2, B is certainly going to 3. अच्छा जी, A is 2, B is going to 3. Let us still double check. C goes to 1. Contract with C, yeah. Void. Illegal contract is contract opposed to public policy. Great. I don't think that I even need to discuss this any further. A is certainly going to 2, B is certainly going to 3. Alright. When two contracting parties agree as regards the subject matter, addendum है ये, section 13, Indian Contract Act, consensus, addendum. You need to know all of these legal terms as well. If you're preparing for 2023, you need to know all of these legal terms as well. Quite a simple question. Samir is enfeebled by cancer, ये वही होगी illustration under undue influence section 17 है, 17 है, 16 है, I don't know, 17 I think. Undue influence is induced by Newton, वो medical वाला उसको फीस ज़्यादा दिलवाएगा, great. This is undue influence. This is a standard illustration. Indian Contract Act is very clear on this. This is pretty much simple. X contested in one election to the House of the People as an independent candidate. 3 months later, he joined the political party in power. ये तो defection, ये तो you'll be disqualified. As per the 10th schedule of India, you will be disqualified for being a member, will not be, not. You will be, see, it's simple, you will be disqualified for for being a member of parliament. It's as simple as that. You cannot join a political party after contesting elections as an independent. नहीं तो फिर independent ऐसा तो फिर independent करते रहो, उसके बाद घूस लो और political party में चले जाओ. 10th schedule with I think will be clear. I'll display it on the screen where it says. So from the 10th schedule, which celebrated case laid down the doctrine of basic. It cannot get simpler than this. It just cannot get simpler than this. All right. अच्छा, ये question tough था by the way. 10 schedule वाला. This is confusing. There's no shame if you got it incorrect. There's no shame if you didn't know about it. All right. But ये वाले जो हैं ये simple हैं, right? ये वाले सारे simple हैं. ये वाला tough था. जो tough है चीज़ उसको मान लेना चाहिए. The charge of impeachment against the President of India, either House of Parliament, Article 61. If I'm not mistaken, sometimes article sections keep on getting jumbled up. बहुत सारी barracks to remember, but either House of Parliament. This is as simple as that. Modification का past year में 1000 बार पूछा हुआ. Now these are the really simple questions. These are the ones which fetch you +4s, and these are the ones which usually end up making you get a 240. वैसे भी कट ऑफ 238 239 के आसपास ही होगा, होपफुली, फिंगर्स क्रॉस, होपफुली डजंट गो अप एनीवेयर अबव दैट, बट एंड मतलब 236 238 आइदर 232 जैसा कि हमने पिछले बार डिस्कस करा था. बट दीज आर द क्वेश्चंस दैट मेक यू क्रॉस दैट 240 मार्क वेरी वेरी इजीली. द ज्यूरिस्ट ये कहाँ से आ गया है? टू ट्रीट इंटरनेशनल लॉ एज पर प्रॉपर लॉ. ये तो LLM का क्वेश्चन है, सिंपल सा फंडा है. LLM का क्वेश्चन है. फिर लोग कहते हैं जी ओ जी ये पूछ लिया वो पूछ लिया फलाना. स्ट्रेट LLM का क्वेश्चन है. दिस इज वेरी कॉमन नॉलेज अमंगस्ट पीपल हु हैव गॉन थ्रू देयर फर्स्ट सेमेस्टर. सो ये पहले सब एक ज़माने में आता था, 2012 13 14 हमारे वाले ज़माने में ये सब पूछा जाता था कि किस ज्यूरिस ने कौन से में किस में विश्वास रखा. सो दिस इज जॉन ऑस्टिन, वेरी वेरी पॉपुलर फिगर इन द वर्ल्ड ऑफ लॉ. ये इंटरनेशनल लॉ को कहता था अरे बेकार सी बात है, क्या इंटरनेशनल लॉ. बेसिकली यही वो बंदा है जिन्होंने ये थ्योरी दे रखी है कि यूनाइटेड नेशंस जो आज की डेट में रशिया यूक्रेन वॉर में एग्जैक्टली क्या कर लिया यूनाइटेड नेशंस ने. तो ये इंटरनेशनल लॉ की बेइज्जती करने वाले व्यक्ति हैं. इनके ऊपर ज्यूरिस्प्रूडेंस के LLB X की प्लेलिस्ट है इस चैनल पे, जाके देख लीजिएगा, आपको अच्छे खासे लेक्चर मिल जाएंगे इनके काम पे. मैथ्स लिस्ट 1 लिस्ट 2 आर्टिकल्स याद इसीलिए करने पड़ते हैं. आर्टिकल सेक्शन कभी अब अगले सालों में कभी IPC के कुछ सेक्शनों से ये पूछ ले, कुछ नहीं कह सकते. इसीलिए तो हर चीज़ के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है. अब कई लोग कहते हैं अरे जो आपने कराया वो तो पूछा नहीं गया. हाँ तो काफ़ी कुछ कराया, काफ़ी कुछ पूछा भी गया, काफ़ी कुछ जो कराया था ताकि अगर वो पूछ लेता तो काम में आ जाता ना बंधु. अगर ये वाला IQ लेवल दिखाओगे तो वकालत तो नहीं चलेगी आगे, क्योंकि आपको तो हर सिनारियो के लिए प्रिपेयर होना है ना. और हर सिनारियो की प्रिपरेशन में फिर वो जो पूछेगा अब हर चीज़ तो नहीं पूछ सकता.
100 ही क्वेश्चन है करेक्ट. ओके, मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2, आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ओके, आर्टिकल 25 इज रिलीजन वाला आर्टिकल, ये तो हमें सबको पता ही है. 21 इज राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ये भी पता ही है. सी इज गोइंग टू 1, चलो फटाफट 2 तो आ गए. डी इज सर्टनली गोइंग टू 2, दोनों उन्होंने. देखिए ये इजीएस्ट वाले तो ऑप्शन पहले ही आपके सामने थे. बी 3 या 4, बी 3 या 4, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 4, बी को जा रहा है 4 को, और इसलिए ये आंसर है. इसलिए कई कई आर्टिकल, कई कई सेक्शन केवल इस एक क्वेश्चन को निपटाने के लिए, अब +4 चाहिए, ऊपर के नंबर चाहिए, हॉस्टल चाहिए, तो फिर तैयारी तो फिर उसी लेवल की जाती है ना. और तैयारी वगैरह अगर कोई लाइक फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग हैं जो एक एकेडमी चलाते हैं, तो हम लोग तो सभी कुछ तैयार कराएंगे ताकि नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आए अंडर एनी गिवन सिनारियो. पूछे ना पूछे आपको पता होना चाहिए. करेक्ट. द डिफेंडेंट मिलोनर, अच्छा वो प्लॉट में से पानी लीक हो गया. दिस इज रायलैंड वर्सेस फ्लेचर. आई डोंट थिंक दैट आई विल read this also. This is strict liability. Absolutely, I would say a clear-cut question. But if you didn't know this, it is expected. Maybe you just didn't know this. तो ठीक है, उसमें कोई शर्म की बात नहीं. बट स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, रायलैंड वर्सेस फ्लेचर. इसके बाद हमारे यहाँ पे एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट इंडियन जुडिशरी ने बेसिकली एक पैदा किया था कि जी हमारे यहाँ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी लगेगी. उसमें एमसी मेहता वगैरह वाले ओलियम गैस लीक केसेस के बारे में जो बात होती है, तब हम आगे बात करते हैं. बट दिस इज रायलैंड वर्सेस फ्लेचर. दिस इज स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की जो आपकी ज़मीन पर है, जो भी अननेचुरल यूज़ आप कर रहे हैं. दिस इज अ टॉट का क्वेश्चन, एडवांस लेवल LLM में पूछते हैं जनरली ये, लेकिन अब यहाँ भी इन्होंने पूछना शुरू कर दिया. The law of torts consists of a number of specific rules prohibiting certain kinds of harmful activity. All right. अच्छा, all residue pigeon वाला क्वेश्चन है. पिजन, हाँ, तो पिजन के ऊपर क्वेश्चन काफ़ी जगह ये पूछते हैं कि पिजन होल थ्योरी इज अ टॉपिक ऑफ विच सब्जेक्ट. टॉट्स की थ्योरी है, बट propounded by Salmond. Now this is either you know it or you don't know it. This is an LLM level question. There is no way that it is expected that a student taking the DULLB will know such stuff, but it was there in the explanation portion of one of the questions. वही वहाँ पे मैंने question यहाँ पे किसी I think past year में एक बार एग्जाम में पूछा गया था, pigeon hole theory is propounded या is in which subject. तो उसकी explanation में मैंने ये नाम कहीं पे डाला हुआ था, तो वहाँ से ये काम हो गया होगा जिन्होंने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा उस टाइम पे. तो ओके, द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 वाज पास बाय द पार्लियामेंट रिप्लेसिंग द स्टैंडर्ड पास्ट ईयर क्वेश्चन. दिस इज इजी, ऑलराइट. आई डोंट कंसीडर दिस वन एज टफ. अभी तक जो आ रहे थे बीच बीच में टफ थे, ये नहीं है टफ. क्यों? क्योंकि ये पास्ट ईयर में कम से कम 5 बार ही पूछा गया है, और आप एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्जाम बिना पास्ट ईयर देखे दे भी कैसे सकते हैं. श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ओके, श्रेया सिंगल इज 66A. ये आपको एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पता ही होना चाहिए. Right, very standard judgment. I would say the very simple question. Hindu married man who has a Hindu wife living marries a Muslim woman under the Indian Penal Code. He is guilty of the offence of adultery. Is no more an offence. Mischief, no. Criminal breach of trust, no. If you don't know the concept, but bigamy certainly yes. Right. It is also ground for divorce. Section 17 of the Hindu Marriage Act. I think so. Right to access to the internet has been discussed in Anuradha Bhasin. Sure. Standard judgment. Easy questions. ये वो हैं, मतलब these are those lollipop questions that you cannot afford to get incorrect. Okay. According to the Prohibition of Child Marriage Amendment Bill 2021, the proposed legal age for marriage of girls is the proposed, not अभी ये मतलब ये implement नहीं हुआ, but it is 21. We are trying to raise it to 21 so that women have equality in this matter as well. As per the Hindu Marriage Act 1955, can a Hindu male marry a second time with the written consent of his living wife? Tough question, confusing question है. No, because it doesn't say so कि ऐसा कुछ हो सकता है. But अगर नहीं भी आता हो, there's no shame in getting this incorrect or not knowing this. Advanced level question. Under Muslim law, marriage is a, I think this should be थोड़ा सा better word होता है. Is like a कर सकते हैं, is akin to a कर देते हैं. Certainly not a, because Islamic jurisprudence doesn't agree with it. But the answer is contract. Very standard question. बट अगर नहीं पता तो नहीं पता, बट वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन. अगर पढ़ रखा है तो आई थिंक मतलब क्वेश्चन बैंक्स और टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा में क्वेश्चन होता है. स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मतलब नो क्लेम कि ये मॉक में से आया था, ऐसा कुछ नहीं. वो बेकार की बातें होती हैं, फिजूल की बातें. ये तो मतलब बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपको हर दूसरी तीसरी किताब में पास्ट ईयर्स में भी मिल ही जाएगा. तो अगर किसी मॉक सीरीज में है भी तो क्या हो गया, राइट.
Which among the following is not a secondary source of Muslim law? Very advanced question. Quran, Sunnah, Qiyas, Ijma is primary sources. This much I know. So I'll mark Qiyas. But this is, Qiyas is the correct because not hai. But this is very advanced. You would not expect it to know this. ये LLM level के questions हैं. और मतलब मुझे तो टू टेल यू ऑनेस्टली मुझे ये नहीं पता इस्तिहान वगैरह क्या है. कस्टम जुडिशल डिसीजन होता होगा. मुझे सिर्फ इतना पता है कि कियास इज अ प्राइमरी सोर्स. तो मैं उस बेसिस पे इसको मार्क कर रहा हूँ. दिस इज LLM. मतलब this is advanced level of studies. So all of these questions the examiner also doesn't expect you to answer. लेकिन अब थोड़ी सी तो देखिए examiner की ego होती है. These are those questions which they know that is advanced level, but वो थोड़े से अपने पेपर के स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए जानबूझ के डालते हैं ताकि आप हर चीज़ में धोनी की तरह बाहर कदम रख के या हेलीकॉप्टर शॉट ना चलाएं. An arrested person is required to be produced before the nearest magistrate, Article 22, and CRPC also. Immediately after the arrest, no. Within 24 hours of such arrest, okay, within 24 hours, excluding the time necessary. So this is the more complete option. So both are correct, but this is the more appropriate, this is the more better option, the best choice amongst all of these four, because this is what it says in the Constitution of India. Indian Evidence Act was drafted by Stephen, kahan gaya? Here. IPC, Macaulay, Thomas Macaulay. That is the correct pronunciation of his name, by the way. मैक्यूले या मकॉली वैसे जो इंटरनेट ने मुझे बताया. Which court stayed the execution of death sentence of Kulbhushan Sudhir Jadhav? This is a modification of a past year standard question है. ICJ. Hopefully you didn't mark International Criminal Court. अगर past year करे हो तो mark करेंगे भी नहीं, right? But that is Supreme Court of Pakistan. वाह इनकी बड़ी औकात हो गई हमारे पेपरों में आके appear हो रहे. Which of the following offences in the Indian Penal Code 1860 has been declared unconstitutional in Joseph Shine? Adultery, right? Marital rape तो अभी split verdict आया Supreme Court में अपील चलेगी. So this is Joseph Shine. Navteej Singh Johar था 377 वाला unnatural offences etc. And then unnatural offences भी नहीं, unnatural offeres लिखा हुआ मेरी टीम ने. खैर offences होगा. So bigamy no, it is adultery under 497. Unnatural offences नहीं was sexual relationship between two consenting adults. That is Navteej Johar and Joseph Shine में 497 की स्टेट का कोई लेना देना नहीं. स्टेट आर्टिकल 12 स्टेट का कोई लेना देना नहीं है कि आप किसके साथ छुएं शादी के बाद. ओके जी, मैच लिस्ट 1 with list 2. ओके, IPC 1822. Theft, fear of injury no, deception no, dishonest conversion no, offences against possession. A goes to 4. A goes to 4. एक दो ऑप्शन है यहाँ पर which are going to 4. All right. B, extortion is fear of injury. Certainly yes. B is going to 1 and B is going to 1. So he also knows which game are we playing. C goes to cheating, as in C is cheating. Cheating is deception and inducement, so certainly is going to 2. And D is going to criminal misappropriation is आपका dishonest conversion. So D is going to 3 and C will go to 2, thus they making option 2 as the correct one. अच्छा जी, टाइम देख लें जरा थोड़ा सा क्या हुआ है टाइम. अच्छा देख ही गया है, कोई बात नहीं. Z will, I think मैं पार्ट 3 की बजाय भी इसी के अंदर लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं. जब मोमेंटम बना हुआ है कौन पॉज वॉज करके करेगा, और होपफुली अभी भी ये रिकॉर्ड कर रहा है, माइक वाइक ऑन है. ओके, Z's will contain these words. I direct that all my remaining property be equally divided between X, Y and H. Okay. X dishonestly scratches out Y's name. मतलब कागजों पे intending that it may be believed that the whole property was left to himself and H. He's committed forgery. He has changed a document and that's classic forgery. IPC I think forgery कहीं पे 440 section number IPC में आपको कहीं पे वहाँ पे मिल जाएगा forgery, the classic case of forgery. So the following is not a ground mentioned under Article 16. Race तो mention है, place of birth भी mention, origin नहीं. Origin कहीं पे भी as such मतलब इन grounds के अंदर ज़्यादातर कहीं पे mention नहीं है Constitution में. I would mark origin and I will be very comfortable with the other 3 options. According to the Constitution of India, the executive power, it doesn't get any simpler than this. The president. Right to sleep, as जिसमें वो रामलीला मैदान में रामदेव जी को लट पिटाई हुई, जिसमें सलवार सलूर पहन के सूट सलवार पहन के भाग गए थे.
स्टैंडर्ड जजमेंट है, राइट? रामलीला मैदान इंसिडेंट. These are the judgments that you need to know. As per the Constitution of India, an ordinance promulgated by the President shall cease to. Ordinance कहाँ पे दी जाती है? Article 123, and if you read that article, you will find your answer. This is 6 weeks, right, from the reassembly of the Parliament. Ex-tutors is parrot to recite an offer. Tough question. ये तो जुडिशरी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है. सॉरी, ऑफिस में घंटी बजी, बाहर कोई आया था, सो आई जस्ट नाउ आई रीस्टार्ट. तो ये तो भैया, ये तो जुडिशरी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है. अगर आपने, आई थिंक आप गूगल में डाल भी चुके होंगे अभी तक. And this is an invalid offer. Why? Because an offer needs to be made by a person, and a तोता is not a person. Strangely enough, जुडिशरी में हम लोग ये केस लॉ ज़रूर करते हैं एविडेंस में. अमेरिका में एक तोते को विटनेस बना लिया गया था, और वो बीवी कहती है, सॉरी, बीवी ने पति को मारा था. आजकल कलयुग आ चुका है, तो बीवी जी ने पति को गोली मार दी थी, एंड पति कह रहा था डोंट शूट, एंड तोता जी ने कोर्ट में जाके, मतलब तोते को विटनेस बना के लाए थे, और उसके बेसिस पे बीवी की कन्विक्शन दे दी गई थी. तो ऐसा भी होता है, बट इंडिया में ये माना नहीं जाता. तो ये तोते वोते वाला मामला हमारे यहाँ नहीं मानते. खैर, वो एविडेंस की बात थी, कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है. So this is an invalid offer. Good, tough question. If you gotten it incorrect or you skipped this, no shame. Absolutely okay. So under the law of contract, call for auction, price catalog in local newspapers. This is simple, no? Invitation to offer. It's always an invitation to offer. दुकानदार बुला रहा है, अखबार बुला रही है, कुछ भी रहा है. This is an invitation to offer. Why? Because you can go and negotiate. The doctrine of frustration of contract. Frustration कहाँ पे दे रहे हैं? Section 56. As enshrined under the Indian Contract Act refers to an invalid no. A contract that is subsequently yes. I don't think that I will need to read the other options. This is frustration. This is one way to perform a contract as well. Under the Indian Contract Act, an agreement by way of wager is void. Satta to void hai, except horse racing. Okay. X a male and Y a female married under the Special Marriage Act. A month after their marriage, Y was forcibly taken and kept at a secret place by a family, okay, who were unhappy with the marriage, right? Aggrieved by the police action and select the appropriate writ. Usko bulao, bring the body. Habeas corpus, always exempt from res judicata as well. Writ कहाँ पे लगती है? High Court में 226 article, Supreme Court में 32. Which of the following appointments is not made by the President of India? अच्छा, this again, I would say decently simple question. बट ठीक है, वन कैन, ये स्पेशल मैरिज एक्ट वगैरह वगैरह आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है. विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ओके, सीएजी सर्टनली यस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सर्टनली यस. यहाँ पे दोनों पे काफ़ी लोग फंसे होंगे. स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द हाउस, हिज अपॉइंटमेंट इज अप्रूव्ड, ही इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, द हाउस इलेक्ट्स हिम. सो आई थिंक दिस, इवन इफ आई वर टू गेट, मतलब इसके अंदर मैं कन्फ्यूजन हो कि अरे वो अपॉइंटमेंट्स कमिटी करती है, ये है वो, ही मस्ट बी फॉर्मली अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. आई थिंक दिस इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज नॉट है ना, क्योंकि स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द लोकसभा. राइट. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज द थर्ड जेंडर इन, दिस इज अगेन मॉडिफिकेशन जो इन्होंने एक बारी, ये क्वेश्चन एक बारी पहले पूछ चुके हैं. आई थिंक थर्ड जेंडर वाज क्लासिफाइड एज एन ओबीसी, उसकी स्लाइट कनेक्टेड मॉडिफिकेशन है. रिकॉग्नाइज द थर्ड जेंडर इन नवतेज सिंह जौहर, सुरेश कुमार कौशल, कॉमन कॉज. नवतेज सिंह जौहर में तो आपका 377 गया था. सुरेश कुमार कौशल, दिस इज ऑल कनेक्टेड, बट सुरेश कुमार कौशल ओवरटर्न नालसा वाली जजमेंट, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, नालसा. कॉमन कॉज तो वो आपका राइट टू डाई विद डिग्निटी एटसेट्रा वाली ये साइटेशन नहीं, तो कॉमन कॉज तो बहुत सारी जजमेंट्स हैं. ओके, दिस डिसेंट लेवल का क्वेश्चन था, आसान नहीं था. ये क्या आ गया जी, पब्लिक इंटरनेट. फिर लोग कहते हैं ये जानबूझ के एलएलएम लेवल बनाते हैं, जुडिशरी इतना टफ तो पेपर. क्या दिख रहा है? The psychological element on the part of a state while acting with the feeling that it is fulfilling illegal. This either you know what I do. This is very tough. Opinion 07. This is LLM. Straight 1-to-1 LLM में से ये question आया हुआ. The judges of the International Court of Justice. Remember, not the international, ये आपका ICC के बारे में बात नहीं हो रही. This is standard static GK. I would say if you are well prepared, you would answer this very, very well. This is standard UN का question. ठीक लेवल का क्वेश्चन है, आसान नहीं है बट उतना टफ भी नहीं है. दिस इज द करेक्ट आंसर. राइट. सो अगले साल वालों के लिए आईसीजे के बारे में ज़रूर पढ़ के जाएं.
A treaty is intended by the party to be binding as long as there is no fundamental change. This again, either you know it or either you don't know it. इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, हाँ वैसे बाय द वे इसके अंदर जो लीगल टर्म्स दे रखी हैं एक आई थिंक इनकी एक या दो जानबूझ के गलत होंगी. दे मस्ट नॉट बी एक्जिस्टिंग इन रियल लाइफ, लाइक एर्गा ओमनेस एक्सेट्रा. यू नीड टू नो, राइट? दिस आई थिंक आई हैड आस्क्ड एज वेल. लीगल टर्म है, स्टैंडर्ड लीगल टर्म है. इनफैक्ट जब भी मैं कहूँ कि मैंने पूछा था, नहीं भैया स्टैंडर्ड लीगल टर्म है, ऐसा क्या हो गया, किसी ने क्या पूछा क्या नहीं, सब कुछ मतलब अब ये सब भी प्रिपेयर करके तो जाना ही पड़ता है. नाउ दिस इज अ टफ क्वेश्चन. दिस इज आइदर यू नो इट और आइदर यू डोंट नो इट. इसमें मतलब थोड़ा सा रुकना पड़ता है. ओके, आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इसने एक बारी और पूछ लिया. अभी आई थिंक पूछा था या मैंने ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है. उसमें 25 था आई थिंक. अच्छा, दो बारी पूछ लिया है. आई थिंक ये रैन आउट ऑफ क्वेश्चन ओनली. ओके, 20 क्लॉज 3. 20 क्लॉज 1 क्या है? एक्स पोस्ट फैक्टर लॉज. 20 क्लॉज 2 क्या है? डबल जेपीडी. 20 क्लॉज 3 क्या है? डॉक्ट्रिन राइट अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन. चलो जी, ये लो जी, डी गोज टू 1. कौन से हैं? दो ऑप्शन रह गए. चलो जी, हटो हटो हटो, देखना भी नहीं तुम्हें. ए गोज टू 3, ए गोज टू 2. ए गोज टू 3 24, सॉरी ए गोज टू 2 एंड ए गोज टू 3. माइनॉरिटी नहीं है 24 में, माइनॉरिटी तो 29 और 30 वगैरह में है. ए गोज टू 2. आ जाओ भाई साहब, कहाँ पे जी? ए गोज टू 2, ये रहा लास्ट वाला ऑप्शन. ठीक है जी, अगर नहीं दिख रहा तो लास्ट वाला ऑप्शन ए गोज टू 2, बिकॉज स्टैंडर्ड है. दिस इज स्टैंडर्ड रट्टा मार क्वेश्चन. एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स इज कंटेन्ड इन विच शेड्यूल? 4th शेड्यूल. सिंपल है. एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड टू नो all the 12 schedules of the Constitution of India. Under the Constitution of India, which of the following is not, अच्छा वो equality दी गई है, S भी लगा दिया गया और he भी लगा दिया गया. She, he can recommend imposition, yes, that is a power. She has the power to issue, yes, ordinances. She has the power to reserve a money bill, absolutely. Article 200 के अंदर 199, 200, etc., etc. Does not have the power to commute the sentence of The governor has the power to commute. देखिए जानबूझ के पार्डन नहीं पूछा उसने, क्योंकि पार्डन में आप लड़ लेंगे डेथ सेंटेंस के ऊपर. कम्यूट तो कर ही सकता है. X living in Delhi dies of a certain heart attack. Okay, his servant Y inform X's family members living in London. अच्छा, 404 आईपीसी जो भी ऑब्जेक्शन के पीछे लड़ रहे थे कि ये थेफ्ट होगा, 404 आईपीसी देख लीजिएगा. there's a dedicated section. अगर ये भी आई थिंक स्टैंडर्ड क्वेश्चन बहुत बारी पूछा ही होगा, कहीं टेस्ट सीरीज में, कहीं इधर किसी किताबों में. स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बट ठीक है, कंफ्यूजन हुई तो हो सकती है, लाजमी है. आपकी उम्र और लेवल ऑफ नॉलेज पे है, अंडरस्टैंडेबल है कि अगर ये गलत हुआ तो हो सकता है, अगर ना पढ़ा हो सेक्शन तो. 15 and 16 6 103rd अमेंडमेंट. अभी चैलेंज हुई अब जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 3:2 अगले साल वालों के लिए. बट 103rd अमेंडमेंट EWS वाली के साथ ही है, 15 6 16 6, राइट? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजंस. बेसिकली बड़े फैंसी तरीके में से पूछ रहा है कि EWS वाली अमेंडमेंट कौन सी है, या 10% EWS की रिजर्वेशन फॉर दी इवन फॉर द जनरल कैटेगरी केम इन वाया व्हिच अमेंडमेंट. हॉट टॉपिक ऑफ द डे. 70 अंडर द लॉ ऑफ टॉर्च द पब्लिकेशन ऑफ अ फॉल्स एंड डेफेमेटरी स्टेटमेंट. पब्लिकेशन है libel, slander is transient, it's spoken. Libel. The renaming of the department. Tough question. Tough question. ज़्यादातर जनता को नहीं आता होगा ये. आना भी नहीं चाहिए. एक आध तो ऐसा भी होना चाहिए ना जो नहीं आए. इसमें ऐसी क्या शर्म की बात है? कोई बात नहीं आया तो कोई बात नहीं. अब आप कहेंगे क्या मैं करंट अफेयर 2016 सब? नहीं भैया, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है. स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है और इसमें कोई शर्म नहीं है कि अगर ये नहीं आया, और इसमें कोई शर्म नहीं है कि अगर ये गलत हो गया. टफ क्वेश्चन. दिस इज, ये कोई भी कुछ भी कहे कि जी हो पता होना चाहिए. नहीं, सॉरी, आई डोंट एग्री विद दिस. डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, श्योर. मेरे लिए ये सब मार्क आउट कराना थोड़ा सा सिंपलर है. मेरे सर पे कोई एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं है, और एग्ज़ाम हो चुका है. मेरे सर पे ये नहीं है कि रिजल्ट मीट होगा, कट ऑफ मीट होगा. जब भी आप ऐसे तो ये क्वेश्चन देख के और मन खराब होता है एग्जाम में, विच कैन इन फैक्ट अफेक्ट the answers that you are about to give in other answer keys as well as in to the other questions as well. तो अब इसको देख के कोई अगले साल की तैयारी कर रहा हो और सोचे अब मैं 16-17 का भी करंट अफेयर करूंगा, भाई साहब बहन जी थोड़ा सा अपने आप को बख्श दो, नहीं हो पाएगा. दिस इज स्टैटिक जीके. For the purpose of providing regulating credit and other facilities for the promotion and development of economic activities in rural areas with a view to promoting integrated rural
development and securing prosperity of rural areas. The government of India established, okay, इंडस्ट्रियल डेवलप, सेंट्रल बैंक, आरबीआई, सॉरी ये तो चलिए, मैं कहता हूँ ये ना भी पता हो, वैसे ये भी पूछा गया था कहीं ना कहीं, तो हमने ये क्वेश्चन पूछा गया है, राइट, बिकॉज दिस इज फॉर्म ऑफ दिस इज अ पार्ट ऑफ स्टैटिक जीके, राइट। तो अब लड़ाई रहेगी इंडस्ट्रियल या नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। आपको क्या लगता है, ऊपर रूरल रूरल करे जा रहा है, अगर रीजनेबल तुक्का भी मारना हो तो ऑप्शन डी है, विच प्रीटी मच इज द करेक्ट आंसर। नबार्ड करके ऑर्गेनाइजेशन है विच इज फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्टैटिक जीके। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से कर सकते थे, दो तो उड़ा ही दिए, अब दो उड़ गए तो मार्क तो कर ही सकते हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, आई वुड गो रूरल रूरल, रूरल ही मार्क कर देते हैं, राइट। नहीं भी आता हो तो चलता है, चलता है, अंडरस्टैंडेबल। ब्लू कार्बन मीन्स कार्बन स्टोर्ड इन द एटमॉस्फेयर, कार्बन स्टोर्ड इन लैंड एंड सॉइल। ये तो ब्राउन कार्बन होगा, है ना, ब्लू। अच्छा, ये तो जोक ही मारने लग गया, कपिल शर्मा शो पे पहुंच गया। अब ये दोनों हो सकते हैं, कार्बन स्टोर्ड इन द एटमॉस्फेयर, कार्बन स्टोर्ड इन कोस्टल मरीन इकोसिस्टम। एटमॉस्फेयर में कार्बन होने लग गया, वैसे आजकल हमारे यहाँ पराली वराली जला के फेफड़ों में काफ़ी कार्बन तो घुस ही गया होगा, मतलब कार्बन हो नहीं सकता था एटमॉस्फेयर वगैरह में। आई थिंक दिस इज अ बेटर ऑप्शन, सो इवन इफ यू वर टू मार्क इट, you would have marked this. I think most people would have gotten this correct. 74, list 1 with list 2. Okay, this is static GK के 4 questions combined into 1. चिपको मूवमेंट तो बाहु गुना है, ये तो सबको पता होना चाहिए। This is simple, so C goes to 1. लो जी, एक ही है, C goes to 1। अगर मेरी टीम ने ठीक टाइपिंग करी है तो एक ही है, मैं तो इसी बचा लिया। और फादर ऑफ इकोलॉजी इंडिया ऑफ कोर्स रामदेव मिश्रा, सो D goes to 4। मुझे बाकी कोई लेना देना भी नहीं है, कहाँ से कौन से क्या मुझे तो इतना पता है, एक से मेरा काम हो गया। तभी अगर एक लाइनर भी पता हो तो ये 4-5 वाले भी कभी कभार निपट जाते हैं। बागलीहर डैम, भैया मैं आपको, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट नो अबाउट दिस, आई हैव नो क्लू ये कहाँ पर है, राइट। ये तो वो केबीसी का वो प्रश्न हो गया कि इसमें लाइफ लाइन भी नहीं बची और फंस गया। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 70 आया तो मेरे पास तो बहुत सारी लाइफ लाइन, मतलब दिस इज इवन आई कैन स्किप दिस एज वेल। तो कहाँ है भाई साहब, ये चेनाब पे है, झेलम पे है, जो भी है, खैर करेक्ट आंसर हम यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे। आई डोंट वांट टू प्रिटेंड दैट आई नो दिस, ऑलराइट, एंड कि मैं आंसर पहले से रट के आया हूँ और फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है। आई लाइक टू सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है, मैंने एक बार क्वेश्चन पेपर देखा ज़रूर था, बट आई डिडंट गो थ्रू, आई वाज जस्ट असेसिंग थ्रू द लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर टू मेक अ फेयर असेसमेंट। ये सब करने से क्या होता है कि खुद की भी प्रैक्टिस होती रहती है। सो आई वांट टू सॉल्व दिस एज मच एज आई कैन हियर। लोनार या लोनर लेक, भीमतल, भीम के साथ कुछ भी हो तो उत्तराखंड। दिस इज अगेन 4 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन मिक्स्ड इनटू 1। सो मोरेरी, ये तो लद्दाख में ही होगी ना जी, ये तो लद्दाख में ही होगी बिकॉज नाम ही वैसा है। लोनर इज ऑलवेज, लोनर तो क्वाइट अ पॉपुलर लेक, ये जो आपके आई थिंक किसी एस्ट्रॉइड टकराया था वहाँ से बनी हुई है। भीम के साथ तो कुछ भी हो दैट गोज टू उत्तराखंड, क्योंकि वहाँ पांडुकेश्वर, वहाँ हेमकुंड साहिब, ये आई थिंक भीम पुल बद्रीनाथ के आगे। इफ़ यू हैवंट गॉन टू दोज एरियाज, जवानी खराब मत करिए, जाके जाइएगा अगले साल। अब तो बंद हो गया इस साल क्योंकि सर्दी वर्दी बढ़ गई, बट देयर आर ब्यूटीफुल प्लेसेस टू बी इन, ऑलराइट। तो लोनर ए गोज टू 3। ये मेरी टीम ने यहाँ पे आई नहीं, 3। बी गोज टू 1, या श्योर दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, A student wanting to study clouds would refer, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, आसान नहीं, नहीं आसान, बिकॉज दिस इज, यहाँ पे चलो जूलॉजी तो आप एलिमिनेट कर देंगे, शायद ये न्यूरोलॉजी भी एलिमिनेट कर देंगे, यहाँ दोनों में फंस जाएंगे। ठीक हो गया तो ठीक है, दिस इज एन आइदर यू नो इट और आइदर यू डोंट नो इट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। आई थिंक द आंसर इज नेफोलॉजी, बट आई डू नॉट एक्सपेक्ट अ स्टूडेंट टू हैव रटूड दिस arrange the following chronological order. Slightly tough question if you haven't gone through pre-constitutional history, right? Now Gandhi Irwin Pact, if I'm not mistaken, cabinet mission तो सबसे लास्ट में ही आया था, right? तो cabinet mission तो यहाँ पे D और D, ये तो पहले ही हटा देते हैं, हटाओ जी। अब कह रहा है B C आया था या C B आया था, क्योंकि A और A तो इन्हीं के साथ पड़ा हुआ है, क्रिप्स के साथ। तो बेसिकली हमसे पूछ रहा है कि गांधी अर्विन पैक्ट ये आपका पहले आया था या साइमन कमीशन आई थी। साइमन कमीशन तो 1927 में आई थी, दिस वाज समवेयर इन 31 इफ नॉट मिस्टेकन। डांडी मार्च हुई थी 1930 में। दिस इज अ टफ वन, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ रखी है तो ठीक है, प्री कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री में तो ये आंसर आ गया होगा आपके सामने। आई थिंक दिस इज द करेक्ट आंसर।
आई थिंक दिस इज द करेक्ट आंसर, BCAD, क्योंकि डी में चल रहा हूँ। कैबिनेट मिशन तो सबसे लास्ट में आया था, क्रिप्स मिशन वाज समवेयर क्लोजर टू दैट ओनली। साइमन का मिशन काफ़ी पहले आ गया जिसमें हमने भगा दिया था इसको 1927 में, एंड गांधी अरविंद पैक्ट वाज जस्ट आफ्टर द डांडी मार्च, सो BCAD इज द करेक्ट वन। व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडिया वाज टर्म्ड एज इट्स हार्ट एंड सोल? ये तो आई थिंक this is pretty much the easiest damn question that the examiner can ever ask from past year में ये इतनी बार तो पूछा गया है, right? And which of the following statements is not true about Mahatma Gandhi? Okay, he wrote the book, yes, he wrote Hind Swaraj. Became the president of the National Congress, yes, he did. ये बेलगांव, ठीक है जी। He was in Delhi, no, he was in Kolkata. Static GK का प्रश्न है, नहीं आता कोई बात, no shame in not getting both of these two correct. नहीं, कभी कभार नहीं पता होता जी, नहीं पता तो नहीं पता, क्या करें। विच ऑफ द फॉलोइंग वर अवॉर्डेड, बट वो जो लीगल वाले जो नुनमुन जो लुल प्रकार के जो क्वेश्चन थे वो तो पता होने चाहिए। विच अमंग द फॉलोइंग वर अवॉर्डेड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड? नाउ दिस दे ऑलवेज आस्क द राजीव, पहले राजीव गांधी खेल रत्न थे, अब मेजर ध्यानचंद, राइट। शिखर धवन को तो नहीं मिला था, इतना तो मुझे पता है। मिताली राज को मिला था, इतना मुझे याद आता है, और साथ में फुटबॉलर भैया को भी मिला था। तो आई वुडंट बी सरप्राइज्ड इफ द आंसर इज A and C. This is a current affair का question, tough current affair का question, but doable if you have gone through the past years and you know कि इस अवार्ड के बारे में तो ये हाथ धो के पूछता है, तो होपफुली कर लिया होगा आपने, राइट। दीपक पुनिया का आई एम नॉट श्योर, बट आई एम जस्ट गोइंग बेस्ड ऑन माई मेमोरी कि आई रिमेंबर चेत्री एंड राज गेटिंग इट। शिखर धवन का पहले ही कुछ और काम हुआ था पिछले साल भी, तो ऐसे बैक टू अवार्ड नहीं मिले होंगे इनको। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, दिस इज either you know it or either you don't know it. हेगड़े है, दिस इज, ये तो जुडिशरी प्रीलिम्स के क्वेश्चन के बारे में के लेवल पे पूछते चले जा रहा है ये आदमी, लेकिन कोई बात नहीं, टफ स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन पूछ लेता सुप्रीम कोर्ट वगैरह का तो चलता, बट अब ये दिल्ली हाई कोर्ट में भी पहुंच गया है, तो either you know it or either you don't know it. This one was, मतलब if you gotten it incorrect, you didn't know it, it's okay. What are the grounds for proclamation of national emergency? Now if you don't know this, फिर तो मतलब क्या ही फायदा। वॉर, एक्सटर्नल इंटरनल, ना भैया। 44th अमेंडमेंट 1978 के चक्कर में अब हमारी आर्म्ड, ये जो आपका जो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की बजाय हमने वी आर रिप्लेस्ड इट विद द वर्ड आर्म्ड रिबेलियन। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस नेचुरल कैलामिटी नहीं है, तो लड़ाई बेसिकली इन दोनों पे रह गई। तो एक्चुअली स्पीकिंग तो 44th अमेंडमेंट के ऊपर ही क्वेश्चन है, एंड आर्टिकल 352, राइट। 356 आपका प्रेसिडेंट्स रूल, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, right? So this is pretty much the correct answer. Okay, who authored the book Eeks? Patel, ये आपका पटेल लाइफ, नहीं पता तो नहीं पता, कोई बात नहीं। इंपॉर्टेंट बुक्स वैसे जनरली पता होनी चाहिए, लेकिन ये एंडलेस हैं, राइट। तो अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, I'll display the correct answer on the screen. I won't pretend. If I were you, I would have also skipped this. The book A Constructive Parliamentarian, ये मुझे पता है, बट आई डोंट एक्सपेक्ट मोस्ट स्टूडेंट्स टू नो दिस। आई सर्टनली डोंट एक्सपेक्ट। एक इम्पॉर्टेंट बुक्स की लिस्ट है स्टैटिक जीके में, बट अगर आप किताबों में जाएंगे तो वो तो एंडलेस है। बट दिस आइदर यू नो इट और आइदर यू डोंट नो इट। थोड़ा सा बोथ ऑफ दीज बुक्स आर वेरी ऑड। आई डोंट थिंक कि इनमें पास्ट ईयर्स में ज़्यादा इनके बारे में कुछ है, क्योंकि पास्ट ईयर्स में ज़्यादातर अगर आप देखें शशि थरूर, सर्वेपल्ली राधाकृष्णन एक्सेट्रा पे। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द नोबेल प्राइज? ये पता होना चाहिए भैया, ये स्टैटिक जीके है जो पता होनी चाहिए। टफ क्वेश्चन बट पता होनी चाहिए। सेट अप अंडर द विल, यस। इट इज गिवन इन द फील्ड्स, यस। ऑन दिसंबर या 1901, यस। नादिया मुराद नहीं, मलाला है भाई, मलाला है यंगेस्ट, राइट। मलाला जी को मिला था यंगेस्ट के लिए, तो मलाला दिस। अगर आपको ये भी एक फन फैक्ट पता हो तो पूरा क्वेश्चन आ गया, +4 आ गए, चाहे बाकी में आप श्योर हो ना हो। क्यों? क्योंकि पूछ रहा नॉट ट्रू। वैसे तो इनकरेक्ट पूछ लेता एक और, मतलब एज इन जस्ट लैंग्वेज फ्रेमिंग है। Which of the following is incorrect about the भारत रत्न? अच्छा जी, सचिन तेंदुलकर, ओके, यस, 54. It has been awarded only to Indian citizens. Nope. नेल्सन मंडेला के पास भी, और फ्रंटियर गांधी को भी हमने दिया था, वो जो हमारे जो गफार खान साहब थे, राइट। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, यस। So this is the correct answer because incorrect पूछ रहा, तो नेल्सन मंडेला के पास भी है। नोबेल प्राइज, भारत रत्न एक्सेट्रा, these are very important strategy के topics. X this
ज़्यादातर दुनिया कनाडा मार्क कराई होगी कि कनाडा का क्या लेना देना नेटो में है। यहाँ का करेक्ट आंसर डिस्प्ले ही कराना पड़ेगा भैया। नेटो में तो बहुत सारी 30 हैं या ऐसा कुछ कंट्रीज हैं, एंड लक्समबर्ग, आई थिंक दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। ब्लाइंड तुक्का खेला है, कहते हैं ना वो दिवाली की ताश पार्टी में कि जी ब्लाइंड खेलो, ब्लाइंड खेला ऐसे ही बस, जस्ट गट फीलिंग, क्योंकि यूरोप और अमेरिका ज़्यादातर हैं। ऑस्ट्रिया, शायद ऑस्ट्रिया का भी नाम सुनने में ही नहीं आता, ऐसा लड़ाकू सा देश है नहीं, शांति प्रिय सा देश है। When did Russia-Ukraine war? Standard current affair का question, 24th of February. I think other law entrances also asked this question. I think yeah, this year this was there in CUET UG as well. I remember this now. This was there in one of the papers. हमने एक टेलीग्राम पे एक PDF भेजी थी on the public telegram channel that is there. उसके अंदर था ये स्टैंडर्ड CA का क्वेश्चन। अरे तो भाई क्या हो गया इसको, ये तो फिर वहीं का वहीं पहुंच गया हमें लेकर। मॉडलेमेंटो तो 1909 थे, और ये भैया 1919 थे, ये भैया 12 मार्च 1930 थे, साइमन कमीशन 1927 थी। तो हो गया जी DULLB कहाँ हो भाई तुम? स्टैंडर्ड स्टैटिक जी के, बट टफ क्वेश्चन। सी आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट अगर गलत भी हुए या नहीं भी पता थे तो ऐसे शर्म खाने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन जो सिंपल कहे हैं अगर वो ना पता हो तो वो हमारी गलती है। ये वाले में अगर थोड़ी बहुत गलती हम खा भी रहे हैं, सॉल्वेबल तो जरूर थे, लेकिन अगर गलती खा भी रहे हैं तो ठीक है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड हम कर सकते हैं। ओके, द टैगलाइन इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया इज एसोसिएटेड विद, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे लोग आई थिंक जनता ऑब्जेक्शन डालना चाहते थे, दिस इज जीआई टैग, क्योंकि जीआई टैग की टैगलाइन ही यही है। So they were confusing it with that concept पूछ रहे हैं इसका। conceptually अगर आप copyright mark करेंगे, लेकिन concept तो उसने पूछा ही नहीं ना। इंडस्ट्रियल डिजाइन और पेटेंट तो हो ही नहीं सकते, राइट? conceptually तो उसने लाइन के बारे में नहीं पूछा कि ये लाइन conceptually या definition wise falls under which of the following IP are saying it's associated with। गूगल कर लीजिएगा, GI टैग की यही टैग लाइन है, राइट? काफी लोग फंस गए होंगे इस क्वेश्चन में, लेकिन काफी लोग करके भी आए होंगे, पार्ट ऑफ स्टैटिक जी के। First product to get a GI tag is Darjeeling tea, right? Assam, state, I think year 2004. The following did not serve as the Vice President of India. Tough question. Tough question. Hidayatullah and Zakir Hussain to surely did. I don't know about these, but इनका कभी नाम नहीं सुना, I'll go with this. It's as simple as that. He was the guy who had imposed the emergency, because the president imposes the emergency 2020 DULLB का question है, Fakhruddin Ali Ahmad, right? Pathak Saab, I really don't know what to say. No shame in getting this incorrect or not knowing this, because वाइस प्रेसिडेंट्स की लिस्ट है, बट अभी तक क्योंकि करंट अफेयर हुआ था, वाइस प्रेसिडेंट नया अपॉइंट हुआ था, तो अगर करके भी जाते, एक बारी रिवाइज करके जाते, तो आई थिंक काम बन जाना चाहिए था आपका। Which amendment to the Constitution pertains to the Goods and Services Act 101st? ऐसे क्वेश्चन you cannot get incorrect। अगर इसने ज़्यादा टफ बनाना होता तो ये ईयर के पीछे पड़ जाता शायद, because that is also a question। GST was introduced in which year? या the amendment was introduced in which year? बट ऐसा इसने करा नहीं। ये क्वेश्चन नहीं गलत हो सकते भैया, ये बहुत सिंपल है भाई, ये वाले बहुत सिंपल है। जो टफ थे वो मैंने आपको बताए, बट ये वाले तो कृपया करके, मतलब इनको मत, अपनी परफॉर्मेंस इन पे ब्लेम करेंगे तो मतलब बेवकूफ़ हम ही हैं फिर। In the context of civil aviation, which is the first airport of India to get disabled aircraft recovery equipment। अब मैं आपको सही बात बताऊं, ऐसा अगर डायरेक्ट करंट अफेयर, this airport was in the news a lot from April to June, क्योंकि ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टर्मिनल एटसेट्रा एटसेट्रा, मोदी जी गए, ये केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। सो इफ आई वर टू मेक अ रीजनेबल गेस, आई वुड हैव मार्क्ड दिस, व्हिच आई थिंक इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि बाकी दिस इज अ करंट अफेयर का क्वेश्चन, एंड किसी ना किसी अखबार में कहीं ना कहीं ये बिल्कुल मेंशन होगा, डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी इक्विपमेंट। This airport has also gotten awards, etc. So it was quite a popular airport. Now, where was the group of 7 G summit held in June? This is Germany. ये ठीक है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, अगर इस पे कोई रोए तो आप गलत हैं। G7 की मीटिंग हो और आपको ना पता हो, G7 के मेंबर आपको ना पता हो, तो DULLB कैसे निकलेगा भाई? बाकी 5 क्वेश्चन पैसेजेस के थे, किसी और दिन करते हैं।
अगर डिस्कस करने हुए तो, but I don't think that they even command a discussion, because after years DULB gave a pretty simple passage. 2 से 3 तो 2 हमेशा टेढ़े होते हैं, but 2 से 3 हमेशा सॉल्वेबल होते हैं. Alright, so that was DULLB 2022. Wasn't really tough, but it wasn't really simple as well. As you saw, a number of questions, LLM level, number of questions were confusing. Number of questions people who think they must have gotten it correct may just not have gotten it correct. But Ishwar ki kripa se, our students are quite happy with the question paper, have performed really well, and Ishwar ki kripa hum pe bani rahe. I wish you all the best if you're preparing for DULLB 2023. Hopefully this analysis has been of help to you. I wish you all the very best. Do take very good care of yourself. Bye.